Good morning. Welcome to a new day and a new beginning. आज तारीख है 24/6/2020. दिन है बुधवार. So today is 24th of June 2020 and day is Wednesday. Normally before speaking I decide a topic that on which I will take out the cards. But today the cards will decide the topic. So we have different topics which are, these days. One topic is related to COVID. Other topic is related to what will happen, earthquake. I just got news, like I was browsing through internet and I came to know that some 7.4 magnitude earthquake hit Mexico. I have been talking about the earthquake since 21st, since the solar eclipse came. And the third topic, which is just very for which like people are very much concerned, it about Sushant Singh Rajput's death mystery. So these are the cards. I will take out 3 cards and based upon the cards I'll select the topic. Okay, so the first topic is COVID. So let me see which card comes up for COVID, whether I should take COVID or not. The answer is no. Okay, because I think it's been overrated and we have had lot of conversations about COVID lately. So I will not take out the card for COVID today. The second is earthquake. Okay, I got a yes, which is King of Pentacles, and the third topic, which is about Sushant Singh Rajput's death mystery. I got no. Okay, rather a lot of no's. So I will not take out card. I'll take out cards for the earthquake scare which is happening. Before that, let me do a quick numerology for today, which is 24th of June 2020. So it is 2 plus 4 is 6. June is 6, which is 6 plus 6 is 12, which is 3. And then 2020, which is 2 plus 2 is 4. 3 plus 4 is 7, which is Ketu. Ketu means spirituality. Ketu means बैराग. केतु मीन्स, केतु का मतलब होता है आपके पिछले जन्मों से जो नॉलेज आ रही है. केतु का मतलब होता है विजडम. नॉलेज बेसिकली किताबें पढ़ने से आती है जो भी है, बट विजडम इज़ योर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. जो आप प्रैक्टिकलिटी एक्सपीरियंस करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसको विजडम कहते हैं बेसिकली, जिसका नाम होता है विवेक. बट मैंने नॉर्मली देखा है, चाहे ये मैं हूँ चाहे कोई और है, जब आपको गुस्सा आता है तब आप काफ़ी बार विवेक का उपयोग नहीं करते हो. आप गुस्से के इमोशन में बह जाते हो, या कोई भी 5 विकारों में से कुछ भी आता है. बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के साथ आप उसके ऊपर मास्टरी पा सकते हैं. सो विद दैट, अर्थक्वेक के लिए हम कार्ड्स निकालेंगे, पर एक जनरल कार्ड ज़रूर निकलेगा आज के लिए. एंड जनरल कार्ड के साथ साथ आई विल एक्सप्लेन द अर्थक्वेक स्केयर. ओके, तो पहला कार्ड आज के लिए, फर्स्ट कार्ड फॉर टुडे, विच इज़ कॉल्ड द एंकर कार्ड, जिसको एंकर कार्ड बोलते हैं. ये हो गया, ये कार्ड है. देखो, अब ये अर्थक्वेक का कार्ड क्यों है? बिकॉज इसमें पानी है और इसमें बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं लोग. सो सुनामी, मैंने पहले बताया था कि जब अर्थक्वेक हिट होगा तो पानी की वजह से भी त्रासदी आएगी. बेसिकली जल तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों एक साथ अटैक कर सकते हैं, दोनों एक साथ व्यथित हो सकते हैं. सो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बेसिकली सेज यू आर ओवरवेल्म्ड बाय प्रॉब्लम्स एंड पर्सनल इश्यूज, dominations, restrictions, forced into living by others' rules. You feel trapped, think there is no way out, your own fear, indecision, priorities may be causing this problem. Solution do exist. The answer require clear thinking and compromise. बेसिकली ये कार्ड बोलता है कि आप ट्रैप फील करते हो, आप
आप दूसरों की रिस्ट्रिक्शंस से बहुत परेशान हो गए हो, फिर भी एक रे ऑफ होप बोलता है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपको खुद कॉम्प्रोमाइज़ करके सोल्यूशन को फाइंड करने की ज़रूरत है। एंकर कार्ड के साथ हम डिटेल कार्ड देखेंगे कि ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ डिटेलिंग क्या हो रही है। डिटेल कार्ड ये है, मतलब आप स्टक हो अर्थ के साथ। ये देखिए, ये वाटर एंड थॉट प्रोसेस है, बेसिकली एयर एलिमेंट है, और ये इज़ अर्थ एलिमेंट। सो अर्थ एलिमेंट क्या बोलता है कि थिंक बिफोर यू स्पीक, look out for best interest. Maybe somebody, okay, if you are a female, then some male will come to rescue you. If you are a male, then some female will come to rescue you. So that's the and if we combine it with the numerology for today, which is Ketu, so this means that some teacher which is of opposite sex will help you. So let's see what the obstacle card for this. So if we talk about the earthquake, so people will come to rescue you if you are ready to compromise. You need to open your own shackles on your own. आपको खुद की बेड़ियाँ खुद ही तोड़नी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। उसी के साथ अगर हम ऑब्स्टेकल का कार्ड देखें तो ऑब्स्टेकल का कार्ड ये है, स्लीपलेस नाइट्स, डिप्रेशन, अगेन ग्रीफ है, इमोशनल पेन है, डिप्रेशन है, गिल्ट है, डीप रिग्रेट है जो आपने पहले कभी कर दिया है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, पास्ट एक्शंस को रिपेंट कर रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो, यू आर कॉज समबडी मिजरी एंड ग्रेट पेन, आपने किसी को बहुत ज़्यादा दर्द दे दिया है जैसा आपको लगता है, अगर आपने नहीं दिया तो एंग्विश है, वरी है, फियर है, सेल्फ डाउट है। ये बेसिकली आपको क्लियरली सोचने नहीं दे रहे हैं। ओनली टाइम विल हील द पेन। ये बेसिकली बोलता है कि टाइम ही पेन को हील करेगा, और ये कार्ड अगर इसमें आया है तो अर्थक्वेक तो आएंगे। आप देख रहे हो ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग कार्ड्स नहीं हैं, थॉट्स में हैं। अगर हम गाइडेंस का कार्ड देखें, वन कार्ड जस्ट स्लिप्स, गाइडेंस का कार्ड में भी ग्रीफ का कार्ड है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप जितना डीप ट्रबल में चले जाओगे उतना ही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ग्रीफ का कार्ड है, लॉस का कार्ड है, रिग्रेट का कार्ड है, सेटबैक का कार्ड है, बट ये गाइडेंस में आया, मतलब आपको ऐसा नहीं सोचना है। लॉस ऑफ रिलेशनशिप, फ्रेंड, वैल्यूड पोजीशन का कार्ड है। धरती हिलेगी तो काफ़ी रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, घर भी खराब हो सकते हैं, जीवन भी अस्त व्यस्त हो सकता है। डिसअपॉइंटमेंट इन लव, फ्रेंडशिप, end of marriage or love relationship. You have strength of spirit to endure, hope for a better future, choose a creative solution to your problem. This is a temporary period and this shall pass. And final outcome हम देखते हैं आज के लिए और this earthquake scare दोनों के लिए। हम लोग final outcome कार्ड अगर निकालें तो final outcome कार्ड अगेन मून का कार्ड है। मतलब मून का कार्ड बेसिकली कार्ड होता है जिसमें आपको डाउट होता है, सेल्फ डाउट। So your personal faith and ethics will be tested during this earthquake, even today also. It's hard to think clearly. कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम स्ट्रेट थिंकिंग करें। स्ट्रेट थिंकिंग हम तब कर सकते हैं जब ये सब कुछ ना चल रहा हो हमारी ज़िंदगी में। अगर हमारी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसा कि अर्थक्वेक, कोविड, और कई लोग वो सुशांत की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, मतलब दे आर सो डिप्रेस्ड। सो अगर ये सारी चीज़ें नहीं चल रही हैं तो आप क्लियरली सोच सकते हो। बट इशू ये है, यू आर कन्फ्यूज्ड एंड ईजिली डिस्ट्रैक्टेड, फियर एंड एंग्जाइटी हॉन्ट योर थॉट्स, पैरानोया, secret enemies. Obviously COVID is secret enemy, earthquake is secret enemy, somebody died then he had some secret enemies. Security आपकी रिस्क पर है, your friends or family may be in danger, bad luck for those you love. इस कार्ड के साथ मुझे एक क्लैरिफिकेशन कार्ड फिर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पॉजिटिव कार्ड नहीं आ जाता, रे ऑफ होप नहीं आ जाती,
तब तक तो कार्ड निकलेगा। सो वन रे ऑफ होप केम। आप मैंने पहले भी बोला था, आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और इस भारत के लिए दान करिए। ऐसे लोगों को जो लेस फॉर्चुनेट हैं, जो सड़कों पर हैं, जिनके पास घर नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि आप अपनी पूरा सब कुछ दान कर दीजिए। द थिंग इज़ दिस, आप प्लीज़ एटलीस्ट अपनी तनख्वाह का 2% से लेके 10% तक आप प्लीज़ दान करिए। दान ये नहीं कि आप पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते फिरें, दान ये कि किसी की मदद करना, ये आइडेंटिफाई करके कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। दान पढ़ाई का भी हो सकता है, दान समय का भी हो सकता है। अगर कोई वृद्धाश्रम है, वहाँ उनके पास बात करने को कोई नहीं है, आप वहाँ जाइए, उनसे बात करिए, वो आपके समय का दान है। अगर आपको लगता है कि किसी को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है तो उसे पढ़ाना आपकी पढ़ाई का दान है, ज्ञान का दान है। अगर आपको लगता है कि किसी को टॉफ़ी देकर, जूते देकर, चप्पल देकर, या किसी के फटे कपड़े सिल कर, या उसे अपने अच्छे कपड़े देकर उसे आप उसका तन ढक रहे हैं, तो वो कपड़े का दान है। तो दान सिर्फ पैसे का दान नहीं होता, दान हर तरीके का हो सकता है। आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सा दान करना है, जो आपके मन से आता है। जो मन से होगा वही दान होगा। और दान का सबसे बड़ा नियम ये है कि ये ना देखना कि दूसरा इंसान आपको रिटर्न में क्या देने वाला है, वही है दान। इस थॉट के साथ मैं आपको बोलूँगा कि डरिए नहीं। अर्थक्वेक का स्कैर जो है वो आपके मन का स्कैर है। दान, पूजा पाठ, भजन में समय लगाइए। और दुर्गा कवच आप पढ़ सकते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से, तो आप अपनी नमाज, 5 समय की नमाज कर सकते हैं। आप दुआ कर सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और इस पूरे हिंदुस्तान के लिए, या पूरे राष्ट्र के लिए, या पूरे वर्ल्ड के लिए भी। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो ऑब्वियसली यू कैन आस्क जीसस क्राइस्ट टू हेल्प फॉर द प्रेयर्स। सिख हैं सिख हैं तो आप गुरु नानक से प्रे कर सकते हैं, आपके गुटके पढ़ सकते हैं, आप अपने गुरुद्वारे में जा सकते हैं, या गुरुद्वारे में अगर नहीं जा रहे हैं तो घर ही गुरुद्वारा है, वो कर सकते हैं। किसी भी कम्युनिटी से अगर आप हैं और आप ये बात ध्यान रखते हैं कि इट्स नॉट अबाउट कम्युनिटीज़ नाउ, ये सिर्फ पंथों के लिए अब नहीं समय रहा है, ये समय है पूरे विश्व के जीवों के लिए। और जून 30 को हमारे जीवों के ग्रह जुपिटर वापस आ रहे हैं धनु राशि में, तो उससे चीज़ें काफ़ी बेटर हो जाएंगी। वो केतु के साथ युति करेंगे, केतु जैसे आज प्रमुख रहेगा, केतु के साथ युति करेंगे तो आपका कोविड का असर काफ़ी हल्का हो जाएगा। तो उसके अलावा अब जब गुरु की बात हो ही रही है तो मैं नंबर 3 और नंबर 5 के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत क्विक रेमेडीज़ हैं। नंबर 3 मतलब जुपिटर, मतलब गुरु। आपको पता है कि जब गुरु आते हैं तो राजा भी अपना स्थान छोड़कर उनके स्वागत में आते हैं। तो गुरु को अगर आप एनहांस करना चाहते हैं तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में ओम का चित्र लगा सकते हैं, या फिर तांबे का ओम रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट कोना ईशान कोण कहलाता है हिंदी में, और वहाँ पर पूजा स्थल माना जाता है। उससे क्या होगा कि आपका गुरु जब एक्सपैंड होगा तो आपको एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल जाएगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। और अगर रिस्पेक्ट मिलेगी तो एंथुजियाज्म, आपका उत्साह बढ़ेगा कुछ करने के लिए, और धीरे 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 आप अपनी उन सोपानों को छू पाएंगे अपनी ज़िंदगी में जो आपने हमेशा सोचा है। और इसके अलावा नंबर 5 बहुत बढ़िया नंबर है। नंबर 5 मतलब मरकरी, मतलब धन का जो नंबर होता है।
तो अगर आप मरकरी को एनहांस करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो प्लीज़ इंटरनल प्लांट्स लगाइए। इंटरनल मतलब इंडोर प्लांट्स इज़ बेसिकली जो पौधे घर के अंदर पनप सकते हैं। जितनी ग्रीनरी आप लेकर आएंगे उतना आपका मरकरी एनहांस होगा। एक तो ऑक्सीजन कंटेंट्स बढ़ेंगे आपके आसपास, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में। और मरकरी को एनहांस करने के लिए आपका जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के बारे में मैंने बताया कि नंबर 3 को एनहांस करने के लिए, जुपिटर को एनहांस करने के लिए वहाँ पे ओम लिख सकते हैं। ओके। और अगर आप मरकरी मतलब मनी को एनहांस करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि देखो वो भी इम्पॉर्टेंट है, हम बैरागी नहीं हो सकते हैं। वी शुड हैव मनी। इवन इफ बैरागी भी हो जाओगे तब भी कोई फ्री में चाय नहीं पिलाएगा। यू नीड टू अर्न समथिंग। तो अगर आप मरकरी को एनहांस करना चाहते हो, साउथ ईस्ट कॉर्नर में आप मनी प्लांट लगा सकते हैं। मनी प्लांट या फिर पुदीना लगा सकते हैं। जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी साउथ ईस्ट कॉर्नर में उतना आपके लिए मरकरी एनहांस होकर आपकी ज़िंदगी में बाहर लेकर आएगा। सो विद दैट लेट मी टेक आउट 1 कार्ड फॉर जुपिटर एंड 1 कार्ड फॉर नंबर 5 विच इज़ मरकरी। सो जुपिटर का कार्ड है सन का कार्ड। लुक एट इट। मैंने क्या कहा कि जब जुपिटर आते हैं तो सूर्य राजा अपनी जगह से खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। तो जुपिटर का कार्ड सन का है। अगर आप जुपिटर के लिए काम करेंगे, अपनी गुरुओं का रिस्पेक्ट करेंगे, उनके लिए एफर्ट्स करेंगे तो आप सन की तरह चमचम चमक देंगे। और अगर हम नंबर 5 की बात करें विच इज़ मरकरी, अगर आप उसको एनहांस करते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे आपकी ज़िंदगी में? गुड टेम्परेंस। आप बैलेंस कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी को। तो इसी के साथ जो डिफरेंट कार्ड्स हैं वो केतु की तरफ इशारा करते हैं, अर्थक्वेक की तरफ इशारा करते हैं, ग्रीफ की तरफ इशारा करते हैं, लॉस की तरफ इशारा करते हैं, पर साथ में वो एक इनसाइट भी देते हैं, एक नॉलेज देते हैं कि जितना आप दान करोगे, जितना आप लोगों की मदद करोगे, उतना आपकी और आपकी फैमिली की मदद हो पाएगी। विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Keep tuning to my channel which is Sai Holistic Healing Store by AK. And with that मैं अपना नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए और या आप डिप्रेस्ड हैं या आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है ज़िंदगी में तो बात करी जा सकती है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बात करके निकल सकता है। आइए इस यात्रा का पार्ट बनिए and share this video in your timeline. I always say sharing is caring. तो प्लीज़ इस वीडियो को अपनी टाइमलाइन पे शेयर करिए। पता नहीं कहाँ एक छोटा सा शब्द एक सुसाइड को बचा सकता है, कहाँ एक छोटा सा शब्द एक मर्डर को बचा सकता है, कहाँ एक छोटा सा शब्द एक जीवन को परिवर्तित कर सकता है। तो क्यों ना एक छोटे से क्लिक के द्वारा हम ये सेवा कर दें। विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। Arvind Kumar Koha signing off from Sai Holistic Healings by AK. Keep tuning. I'll be back. Good morning.